नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुञ्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराकार। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. એમાં સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં પહેલા 5 કળશ આપણે પૂરા કર્યા છે. આજે છઠ્ઠો કળશ એટલે સળંગ કળશ 198 નો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. સમયસારમાં કુંકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 318 પછીથી આ કળશ કહેવામાં આવ્યો. 318મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે વૈરાગ્યને પામેલો નિર્વેદ પ્રાપ્ત એટલે કે વૈરાગ્યને પામેલો જ્ઞાની મીઠા કડવા બહુવિધ કર્મફળને જાણે છે. તેથી તે અવેદક છે એટલે કે એને ભોગવતો નથી, માત્ર એના ફળને જાણે છે, એને ભોગવતો નથી. એટલે એના ભાવાર્થમાં એ રીતે વાત કરી કે જેનાથી વિરક્ત હોય તે તેને સ્વ વશે તો ભોગવે નહીં, વિરક્ત છે તો એને પોતાના વશે અથવા તો રુચિપૂર્વક તો ભોગવે નહીં, અને પરવશે ભોગવે તો તેને પરમાર્થે ભોગતા કહેવાય નહીં. આ ન્યાય જ્ઞાની કે જે પ્રકૃતિ સ્વભાવને કર્મના ઉદયને પોતાનો નથી જાણતો, પોતાને નહીં જાણતો તો એ એનાથી વિરક્ત છે. એટલે તે સ્વયંમેવ તો પ્રકૃતિ સ્વભાવને ભોગવતો નથી, એટલે કે કર્મના ઉદયને એ ભોગવતો નથી, કેમ કે એનાથી એ વિરક્ત છે. અને ઉદયની બળજોરીથી પરવશ થયો થકો પોતાની નિર્બળતાથી ભોગવે તો તેને પરમાર્થે ભોગતા કહેવાય નહીં. વ્યવહારથી ભોગતા કહેવાય, પરંતુ વ્યવહારનો તો અહીં શુદ્ધ નયના કથનમાં અધિકાર નથી, માટે જ્ઞાની અભોગતા જ છે. આ વાત કર્યા પછીથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને આ કળશની રચના કરી. એટલે એમાં એ જ વાત કરવામાં આવી. એટલે કહે છે કે આ અર્થનું કળશ રૂપ કાવ્ય કહે છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે જ્ઞાની કર્મને કરતો નથી તેમજ વેદતો નથી, કરતો નથી તેમજ વેદતો નથી, કર્મના સ્વભાવને તે કેવળ જાણે જ છે. એમ કેવળ જાણતો થકો કર્ણના અને વેદનના એટલે કરવાના અને ભોગવવાના અભાવને લીધે શુદ્ધ સ્વભાવમાં નિશ્ચળ એવો તે ખરેખર મુક્ત જ છે. એ જ્ઞાની છે, એ મુક્ત જ છે. તો સમયસાર કળશ અમૃતમાંથી પંડિત રાજમલજીએ ખંડાન્વય સહિત જે અર્થ કર્યો છે એ લઈએ. એમાં કહે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ રાગાદી અશુદ્ધ પરિણામોનો કરતા નથી અને સુખ દુઃખ ઇત્યાદિ અશુદ્ધ પરિણામોનો ભોગતા નથી. કેવો છે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ? નિશ્ચયથી જે શરીર ભોગ રાગ આદિ સુખ દુઃખ ઇત્યાદિ છે તે સમસ્ત કર્મનો ઉદય છે, એ જીવનું સ્વરૂપ નથી એવું સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જાણે છે. શું જાણે છે? કે જે શરીર ભોગ રાગાદિ સુખ દુઃખ ઇત્યાદિ છે તે સમસ્ત કર્મનો ઉદય છે, એ જીવનું સ્વરૂપ નથી એવું સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જાણે છે. અને એ જાણે છે પરંતુ એનો સ્વામી નથી થતો. એટલે કે છે કે પરંતુ સ્વામિત્વ રૂપ પરિણમતો નથી, એનો સ્વામી થઈને પરિણમતો નથી, માત્ર એનો
જાણવા વાળો થઈને પરિણમે છે, એને જાણે જ છે માત્ર. તે કારણથી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જેવા નિર્વિકાર સિદ્ધ છે તેવો છે. સિદ્ધને કોઈ વિકાર નથી, એટલે એ અપેક્ષાથી અહીંયા એમની સાથે સરખામણી કરી છે કે એમને કોઈ વિકાર નથી, તો એવી રીતે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ માત્ર આ કર્મના ઉદયને જાણે છે, એના સ્વામીપણે થતો નથી. કેવો છે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ? જેટલી છે પરદ્રવ્યની સામગ્રી તેનો નાયક માત્ર છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિની જેમ સ્વામી રૂપ નથી. વળી કેવો છે? શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુમાં આસ્વાદ રૂપ મગ્ન છે. શા કારણથી? કર્મનું કરવું, કર્મનો ભોગ એવા ભાવ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને મટ્યા છે તે કારણથી. ભાવાર્થ આમ છે કે મિથ્યાત્વ સંસાર છે, મિથ્યાત્વ મટતા જીવ સિદ્ધ સદસ્ય છે, સિદ્ધ સમાન છે. મિથ્યાત્વ મટતા જીવ સિદ્ધ સદસ્ય છે, સિદ્ધ સમાન છે. તો આ રીતે આ 198મો કળશ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ એનો જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આજે લઈએ આપણે. કળશ પ્રવચન ભાગ 6, પાન નંબર 151. એમાં પ્રવચન નંબર 221, કળશ 198 પહેલેથી શરૂ કરી અને આપણે લઈએ છીએ. जीव रागादि से परिणाम का करता नहीं है. क्योंकि शुद्ध जीव स्वभाव या अनुभव में आया तो शुद्ध जीव तो वितराग स्वरूप ही है. ऐसी सम्यक दृष्टि हुआ चौथा गुणस्थान. तो कहते हैं कि अशुद्ध रागादि परिणाम का करता नहीं, अशुद्ध परिणाम का रचने वाला नहीं. होता है पर वो मेरा कार्य है ऐसा नहीं. उसका स्वामित्वपना छूट गया है और अपने में राग का ज्ञान करके ज्ञान का वेदन करते हैं. सूक्ष्म बात है प्रभु. धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, इसको कहिए कि जिसको अपना स्वभाव ध्रुव शुद्ध चैतन्य જેને નિયમ સારમાં કારણ પરમાત્મા કહ્યું, એને दृष्टिમાં લઈ जिसका अनुभव हुआ है मैं तो आनंद ने ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वभाव से विपरीत राग आदि भाव, दया, दान, व्रत आदि का विकल्प होता है, उसका कर्ता नहीं होता. समझ में आया? उसका ज्ञाता दृष्टा अपने जानते हैं. मेरी चीज में वो राग नहीं, व्यवहार आता है. दया, दान आदि विकल्प भक्ति भगवान की, ऐसा भाव आता है. पर वो उसका ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, क्योंकि अपना स्वभाव ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप, इसकी अपेक्षा से राग की विकल्प की रचना करना ऐसी दृष्टि में है नहीं, और दृष्टि का विषय में पण ये है नहीं. समझ में आया? कहते हैं कि राग आदि अशुद्ध परिणाम, राग आदि એટલે દ્વેષ आदि अंश आदि अशुद्ध परिणाम का करता नहीं है. हाँ. करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा. ये निजराधिकार क्या है? करता सो जाने नहीं कोई, जाने सो करता नहीं कोई. करे कर्म सो ही करतारा. जो राग मेरा कर्तव्य है ऐसा करने वाला है, ये करता ही होता है मिथ्या दृष्टि. करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा.
पर अपना स्वरूप जो स्वपर प्रकाशक है, इसका जिसको अंतर में ज्ञान दर्शन हुआ है, वो राग को जानने वाला रहते हैं। विश्वास जी यही बात भगवान बापू भारत का राग जाने सो जानन हारा, ये बात है। राग आता है तो राग संबंधी का ज्ञान, राग है माटे राग का ज्ञान होता है ऐसा भी नहीं। अपना स्वभाव की जहाँ दृष्टि हुई, सम्यक दर्शन, आनंद का अंश वेदन, तहाँ ते ज्ञान की पर्याय उस समय में स्वतः प्रकाशक पर्याय अपने से अपना सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। तो राग को जानता है कहना ये भी व्यवहार है। ये राग संबंधी अपना ज्ञान है, ये ज्ञान को ज्ञान जानते हैं। आई बात है। उपदेश में वाक्य तो ऐसी आवे कि राग को जानते हैं, या जो राग तो पर है, राग को जानते हैं। ज्ञान ज्ञान स्वपर प्रकाश अपना सामर्थ्य में राग का ज्ञान हो जाता है। कि राग है बाकी नहीं, अपना स्वरूप की दृष्टि हुई है तो अपने स्वपर प्रकाश पर्याय अपना सामर्थ्य से अपने में होती है। फिर बहु बापू समझ में आया। अशुद्ध परिणामों का भोग करता नहीं और सुख दुख से लेकर अशुद्ध परिणाम का भोगता नहीं। सुख दुख की कल्पना ना हो, सुख आत्मा का सुख की बात नहीं है। सुख दुख की कल्पना ना, सुख इंद्रियों तरफ का ठीक है ऐसा राग और ठीक है ऐसा द्वेष, ये सुख लिया। आत्मा का सुख नहीं है, बात नहीं। ये सुख दुख से लेकर अशुद्ध परिणामों का इंद्रिया ने तो सुख इतने इंद्री में सुख है ऐसी कल्पना, ये यहाँ लेना है। सुख आत्मा का सुख यहाँ बात नहीं। सुख दुख का दुख से लेकर अशुद्ध परिणाम का भोगता नहीं है। क्योंकि जो अपना आनंद को भोगता है, स्वाद का आनंद के आगे और राग का स्वाद जहर जैसा दिखे। विषकुंभ कहा नहीं मोक्ष अधिकार में, शुभ भाव को भी विषकुंभ को कहा। जहर का खड़ा, कुंभ के खड़ा कट, जहर का कट। अपना भगवान अतीन्द्रिय आनंद का दो उसका भान हुआ और सम्यक दर्शन में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का, अरे अनंत शक्ति जितनी है इसका समस्त शक्ति का अंश व्यक्त प्रकट वेदन में आया। जितनी शक्ति है अनंत, अनंत शक्ति की व्यक्तता का अंश। तो सुख दुख जहर का भोगता नहीं होता। समझ में आया। इस सुख दुख की कल्पना को जानने देखने में रहते हैं। हाँ स्वरूप से, क्योंकि प्रभु तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा इसका स्वभाव टिकाव है, सर्वज्ञ ने सर्वदर्शी स्वभाव टिकाव है। समझ में आया। एक भोगता भी नहीं है। कैसा है समय दृष्टि जीव, किल अयम तत्स्वभाव इति केवल जाना थी जो। किल એટલે ખરેખર, निश्चय से, किल નો अर्थ ખરેખર, निश्चय से वास्तविक, ऐसा निश्चय से अयम शरीर भोग राग आदि सुख दुख इत्यादि समस्त तत्स्वभाव कर्म का उदय है, ये जीव का स्वरूप नहीं।
समझ में आया? भगवान जीव का स्वरूप स्व अपना रूप तो आनंद ने ज्ञान ही अपना स्वरूप है। राग आदि अशुद्ध आदि ये अपना स्वरूप स्वभाववान का स्वभाव ही नहीं। राग आदि तो अपना स्वभाव का जानने वाला जीव ये उसका असुर परिणाम का कर्ता भोक्ता होता नहीं। ये कर्म का उदय जीव का स्वरूप नहीं। हाँ तो तत्स्वभावम एम कहना है, एयम तत्स्वभावम इति केवलम जानाति। बस क्या तत्स्वभावम? यही स्वभाव की बात नहीं है। राग दया नाम विकल्प आदि होता है। तत्स्वभावम ये स्वभाव का अपना ज्ञान में रहकर ये लेते हैं। देखो जीव का स्वरूप नहीं, ये तत्स्वभावम कर्म का उदय स्वभाव जीव का स्वरूप नहीं। इति केवल जाना थी। सन्नदृष्टि जीव ऐसा जानता है। बस अपने में है नहीं, अपने से हुआ ही नहीं। विकृत अवस्था एक कर्म का जन्य उत्पन्न। कर्म का जन्य क्या अर्थ है कि कहीं कर्म से उत्पन्न करा या नहीं? उत्पन्न तो अपनी पर्याय में कमजोरी से निमित्त के वश होकर हुआ है, पर एक परिणाम जीव स्वरूप का नहीं। इतना बनाने को कर्म निमित्त का ये स्वभाव है एम कहा, पर निमित्त बनाया है ऐसा यहाँ नहीं लेना। पर अगर कोई को बनावे विकार का विकार इतना ताकत है नहीं कोई में। समझ में आया? यहाँ तो कर्म का स्वभाव का अर्थ है विपाक भाव विकार मेरा स्वभाव नहीं। तो एक कर्म नाम विकारी दुख रूप का आदि कर्म का ही स्वभाव है। આવી વાત છે આંખોं લાગે માણસને। शरीर भोग रागादि सुख दुख इत्यादि समस्त कर्म का स्वभाव है। यूं तत्स्वभाव से ना जीव का स्वरूप नहीं। इति केवलम जानाति, केवलम एम खास करीने केवल जानाति। बस केवल जानाति, राग को केवल जानाति। केवल जानाति ना अर्थ जरिए उसका कर्ता भोक्ता न होता, केवल जानाति। आવું સ્વરૂપ છે। केवल जानाति अपने में रहकर कमजोरी से जो विकार आदि हुआ उसको केवल जानते ही है। केवल नाम अकेला जानता ही है। जरी भी करता पोता होता नहीं। ये माटे केवल बात है। નિગમ સંતોની વાણી ઠેસ સ્પર્શી નાખેલી છે। એ વાત ક્યાંય છે નહીં। अंतर की बात है। तो समझ में आया? क्या कहते हैं? इति केवलम जाना थी। समृष्टि ऐसा जानता है, परंतु स्वामित्व रूप नहीं प्रणमता। धनीपते अपना ऐसा नहीं होता। व्यवहार रत्नोत्तरी का परिणाम सम्यक दृष्टि को पंचम गुणोत्थान को मुनि को भी आता तो है। समझ में आया? पर उसका स्वामी तो नहीं प्रणमता। स्वस्वामी संबंध शक्ति अपने में है। 147 शक्ति में 47 छिल्ली आखिर की स्वस्वामी संबंध। स्व नाम अपना देव शुद्ध गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध। स्व अपना स्व स्वामी उसका स्वामी इसका स्वस्वामी संबंध गुण है। तो गुण की पकड़ जिसकी गुणी को हुई ये स्वस्वामी संबंध का ही स्वामी होता है। राग का संग होता क्या किया फिर आप केम न हुआ स्वामी न होता है कि अंदर आत्मा में एक स्वस्वामी संबंध नाम का गुण है, शक्ति है। सात प्रभु
उसका सत्व कहो, भाव कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, एक गुण में एक स्वामी संबंध नाम का गुण है। वो कारण है अपना स्वभाव का भान जहाँ हुआ है, ये अपना स्वरूप का स्वामी संबंध रहते हैं, पर के साथ स्व और मैं स्वामी ऐसा होता नहीं। हाँ 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 भाई, भाषा तो हाजी से प्रभु, भाव तो है ही है, दूसरा क्या करेंगे। हाँ, भगवान है प्रभु स्वरूप, एक तो भगवान स्वरूप अंदर है। हाँ हाँ, कहते हैं कि केवल जाना दी अर्थात केवल नो એટલો કર્યો कि उसका स्वामी प्रणाम नहीं तो उसका केवल और पूर्ण ही जानने वाला ही रहता है। उसका अर्थ किया कि उसका स्वामी प्रणाम नहीं होता। समझ में आता है? हाँ तो भाई वाकई विद्वतानी चीज नहीं, हाँ तो अंतर की चीज है। ये कोई भाषा में होशियार થઈ જાય ને, લોકોને સમજાવે ને, માટી જ્ઞાન વિદ્વતા એ કોઈ જ્ઞાન नहीं, ज्ञान तो कोई दूसरी चीज है। हाँ हाँ हाँ, लोगों को समझाने में आते भी नहीं, ऐसी शक्ति न हो, उससे संग ज्ञान चला नहीं जाता। हाँ हाँ, क्या मानेगा तो शिथिल नहीं हो जाएगा? शिथिल એટલે ये माने એટલે अंदर उधर पुरुषार्थ हुआ। क्योंकि आत्मा में एक वीर्य नाम का गुण है। एक गुण का कार्य क्या लिया है सूत्राली शक्ति में, समय सार आखी सूत्राली शक्ति। तो ये आत्मा में वीर्य नाम का गुण है पुरुषार्थ। वीर्य जड़ है, जिसका पुत्र पुत्री उत्पन्न होता है, वीर्य जड़ माटी धूल। तो अंदर एक वीर्य नाम का वो है अनादि अनंत। तो उसका स्वरूप ऐसा लिया है प्रभु, ये ऐसा है कि वीर्य स्वस्वरूप की रचना करे, उसका नाम वीर्य कहिए। अपना शुद्ध परिणाम निर्मल की रचना करे, उसका नाम वीर्य गुण कहिए। अशुद्ध व्यवहार रत्न की रचना करे, हाँ हाँ हाँ, उसको तो नपुंसक कहा है। कुंपावधिकार में और दो ठिकाने क्लीब क्या है संस्कृत में, क्लीब। हाँ 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 हाँ, कुंपाव का भाव की रचना करे, एक क्लीब है। क्योंकि जब क्लीब नपुंसक को वीर्य होता नहीं तो उसको पुत्र होता नहीं। ऐसे शुभ भाव में धर्म पर्याय उत्पन्न होती नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? तो यहाँ परंतु स्वामित्व रूप नहीं प्रणमता, प्रणमे से जब लोग राग न हो ત્યાં राग प्रणमते तो है ने, और नई ना अधिकार में तो ऐसा भी लिया 47 नई में कि धर्मी हो संत हो वो भी राग आता है, उसको राग का प्रणमन इतना करता हूँ ऐसे जानते हैं। कर्ता नाम करने लायक एम नहीं, कर्तव्य एम नहीं, कर्ता नाम प्रणमना करता ऐसा तो मेरे से करता हूँ मैं, 47 नहीं में ऐसा लिया है। और भोगता भी मैं हूँ, मेरा मैं भोगता राग का होता, पर्याय दृष्टि से। और पर्याय से द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में कर्ता पुत्र भोगता है नहीं, पर पर्याय में संकेती को भी जब लग राग ने पुण्यादि का परिणाम होता है तब लग करता है, ऐसा नहीं से जानते हैं। हाँ हाँ, और भोगता भी मैं हूँ ऐसा जान, पर कई अपेक्षा पर्याय दृष्टि में पर्याय नु ज्ञान करने को व्यवहार नहीं था। यहाँ तो निश्चय का जहाँ अंदर दृष्टि का विषय के माध्यम ज्ञान चलते हैं, यहाँ तो उसका परिणमन का कर्ता मैं ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, मनोलाल जी भरनी है ने, 2 प्रश्न क्या था आया था जयपुर आए थे खास, एक में बैठकर शुल्क है ना, शुल्क आया था, 2 दिन लिए थे। तो 2 प्रश्न क्या था उसने,
पहला प्रश्न क्या था, क्या राज को पुद्गल परिणाम क्यों कहा? भाई जानते ना मनोलाल जी कि पुद्गल परिणाम क्यों कहा? तो प्रभु ये निकल जाते हैं, अपना नहीं है, निकल जाते हैं। मेरे पुद्गल कहा, अपने में रहे ये जीव है, निकल जाता है। माटी पुद्गल परिणाम नहीं, पर पुद्गल कहा है। कर्ता कर्म में तो राग दया दान विकल्प को पुद्गल कहा है। आयु से 75-76 का समाने समझ में आया? बे प्रश्न होते, एक ही प्रश्न हुआ था। एक प्रश्न कि आप तुम्हारी तरफ से उद्देश्य कार्य का जो खुलासा हो जाए तो बहुत, क्योंकि लोग करते हैं कि इतना बोला ना था, पर इतना अर्थ है उद्देश्य का अर्थ ऐसा हो जाए हमसे, हमारा तरफ से कि मैं के साथ उद्देश्य प्रभु का विरोध में क्या ही करूं। ये लोग करते हैं यानी लेते हैं तो उद्देश्य के एम कहना से लोग करते हैं ना, लेने वाले को क्या अपन खबर नहीं, देने वाले मेरे मत बनाते आता। समझ में आया? तो 11वीं परिमा वाला को भी खपते नहीं, उद्देश्य को कोटि टूटते हैं 9 कोटि में। समझ में आया? अनुमोदन हो जाता है, लिया था 9 कोटि का त्याग नहीं रहते थे। समझ में आया? ये प्रश्न तो हमारा गृहस्थाश्रम में था 39 साल, 70 साल में दीक्षा हुआ इंडिया की। तो इससे 39 समझे, 60 और 9। तो हमारा गुरु को मैं प्रश्न किया था, 65 वर्ष हुआ। फिर आ मकान बनावे साधु माटे અને સાધુ વાપરે તો 9 કોટી में कोटि कई टूटे। 9 कोटि समझ नहीं, मन वचन में क्या करण करવાનું तो ये वक्त प्रश्न किया 65 वर्ष पहले। ऐसी बात सुनी कि साधु पाछा एनमेट बनावे लिए, साधु नहीं वापरे। तो मैं पूछा क्या था 9 कोटि का त्याग है, तो उसके माटे मकान बनाए ना वापरे तो कोटि कई टूटे। तो हमारा गुरु बद्रिक था, वो संप्रदाय की दृष्टि तो संप्रदाय ઈચ્છા देती थी, પણ આ બદ્રિક સ્વભાવ એટલે એકદમ મારી દીક્ષા અટકી જાય એ કારણે दिया कि मैं दीक्षा लिया नहीं था। मैं प्रश्न किया था पहले कि तुम्हारा भाई ये मकान कराया तुम्हारा भाई थी, तुम्हें वापरो एम क्यों करना है? मैं जवाब न दिया, हमारा ख्याल न थी ये वक्त अनुमोदन आवे है। 9 कोटि में कोटि टूट जाती है। समझ में आया? बापू आ तो मार्ग प्रभु का है, कहीं कोई का नहीं, अपनी कल्पना से अर्थ करना एक कोई चीज नहीं। भगवान विराजते हैं, परमात्मा भगवान साक्षात विराजते हैं, पेटी ने नामे कहीं चलाना मार्ग प्रभु का है भाई। हाँ, भाव का पेट होना चाहिए ना उसको। तो उसने प्रश्न किया है उद्देश्य में तो भैया मैं तो सीधी रीति शांति से मैं कहा तो मैं तो द्रव्यलिंगी क्षुलक भी अभी मानते नहीं कोई को। सुनते थे शांति से, मैं शांति से कहा, मैं तो वस्तु की थी द्रव्यलिंगी क्षुलक भी हम तो कोई को मानते नहीं अभी। कहीं भी उसने माटी लेते हैं। मैं तो शांति वस्तु कोई का अनादर हमारा नहीं, विरोध तो भगवान है। आत्मा के साथ तो प्रेम रखना, कोई पण मानस हो गमे तेटली विरुद्ध और श्रद्धा के विरुद्ध हो, पण को प्रत्ये वैर विरोध बिल्कुल न करना। शांति से ये भी भगवान है अंदर। एक समय की भूल है, ये भूल निकालेगा, अपने तो ऐसा लिख रखा। समझ में आया? नहीं तो भाई मैं तो क्या कहूँ प्रभु, भगवान का विरोह पीड़ाचार्य અને એને માટે લેकर दोष नहीं, ऐसा है नहीं भाई। उसके माटे लिखते हैं एक साधु बनाकर। तो मैं तो ऐसा कहा, अभी भी आया था ना 5 साधु, अभी भावनगर गए ने 5 साधु थे, 5 अमेरिका थी, 116 संज्ञा और एक मानस था हार करने 4-5 बाइयों थी, 5 हार बनाने माटी। मैं प्रश्न किया था क्या उद्देश्य कार्य करते हैं कि हमको क्या खबर पड़े कि अवधिक नहीं हम
के हमारे में के बनाते हैं नहीं तो 12-13 जना में के बनाते थे 5 जन यानी साथ कोई ब्रह्मचर्य तो बहुत नर्म ये आया हमारे पास महाराज माने मोक्ष मारे प्रकाश आपको हिंदी मिलती नहीं है आप ले जाओ पेट ले जाओ राम वाचो क्या पूछ बहुत है यहाँ थोड़ा ये नरम था कोई कापुर नो व्यापारी था एक मानस साथ में थे ये भोजन बैठे 4-5 बार भोजन उद्देश्य है उसमें थी बिल्कुल कोटि न टूटती है सुना दोष है अहिंसा का दोष है और उसके माटी बनाते हैं और जहाँ भोजन लेने को जाते हैं तो ये क्या कहते हैं आहार शुद्ध बोलते हैं ना आहार शुद्ध वचन शुद्ध मन शुद्ध तो झूठो है बनाया तो उसे माटी आहार शुद्ध कैसा आया અને बोला तो लेते हैं झूठा क्या ना प्रभु मारेगा ऐसा हो कोई व्यक्ति का माचेनी बात नहीं है कि हाँ तो वस्तु का स्वरूप की स्थिति की बात है भाई भगवान कोई को दुख आए ऐसा तो कोई की भावना हो समझ में आया यहाँ तो कि भाई आ है अहिया आવું खरा तो शुद्ध परिणाम बिल्कुल गिरता है थोड़ा अस्थिरता का उसका भी स्वामी नहीं रहते मुनि के क्षोक माटी बनाया आहार ले तो कोटि टूटती है सुना टूटती है हिंसा टूटती है 9 कोटि में कोटि टूटती है प्रभु मार्ग ऐसा है आज प्रभु ना विरोह કર્યા वितराग परमात्मा અત્યારે हाजर नहीं અને પાછલા ऐसा गड़बड़ चलाओगी बापू मार्ग ऐसा नहीं अवधि ज्ञान की क्या बात है मैंने साथी देता है बड़े ही बवधी क्या बोल चोखा 5 साथी 12 मानस ने रामनार 4 कोने बचारा दे तो बार जवाब आओ बापा की दुआई नहीं भाई हमने तो कि यही बात से हाँ ये कहते हैं कि कदाचित मुनि को अशुभ राग आ जाते हैं शुभ राग मुनि को तो भी जानने वाला रहते हैं 12वीं गाथ में आया ने 11वीं गाथ में ऐसा कहा भूयत्तम असिरो खलु समाई थी हवे जीवो પછી 12वीं गाथ में ऐसा कहा व्यवहार दे सीधा अपन जे दो अपन में ठीदा भावे तो त्या व्यवहार नो उद्देश्य थी प्रश्न है नहीं व्यवहार दे सीधा अपन जे दो अपन में ठीदा भावे त्या अर्थ ऐसा कहते हैं कितने लोगों के नीचे का मानव को व्यवहार का उपदेश देना ये बात है नहीं क्या उसकी व्याख्या ऐसा है व्यवहार देशीदा टीका में लिया है अमृतचंद्राचार्य कि राग आता है उसको जानना ते काले जानना ये व्यवहार देशीता कहने में आया है शू शब्द है बोलिए शुद्ध है हाँ ते काले से शुद्ध तदापे मारे थी शुद्ध है तदापे शुद्ध है संस्कृत तदापे ते काले जाने लो प्रिय व्यवहार आता है ते काले जाने लो बीजे समय दूसरा व्यवहार तो ते काले ते जाने लो क्योंकि समय समय में धर्म की शुद्धि होती है और अशुद्धि घटती है तो ते समय लिया ऐसा पाठ है तदात्व लिया है तदात्व ना ते समय जाने लो प्रयोजनवान जो पहले समय जाना कि अशुद्धता थोड़ी है અને શુદ્ધતા વિશેષ है पीछे जनी शुद्धता विशेष हुई अशुद्धता घटी तो ते समय ते जाने ते प्रकारे जाने लो प्रयोजनवान है समय समय का भिन्न भिन्न ज्ञान ते समय जाने का प्रयोजनवान है ऐसा तदात्व शब्द पड़ा है बड़ा टीका संस्कृत में बड़ी स्पष्ट किया है अमृतचंद्राचार्य अब उसका अर्थ ये करते हैं सब कि व्यवहार देख नीचेला का उपदेश को व्यवहार का उपदेश करना ये उपदेश करना की व्याख्या है ही नहीं भाई प्रश्न किया था शेठ साहू जी दिल्ली कलकत्ता में यहाँ आशय के ने व्यवहार देशना क्यों बापू देशना नो त्या उपदेश नहीं संस्कृत टीका तो देखो ते समय जब व्यवहार आता है जितना और शुद्धि की जितनी पर्याय है ये दो को जानना ये व्यवहार है त्रिकाल को जानना ये नीचे है न पर्याय ने शुद्ध शुद्ध की जानना न व्यवहार है शू था प्रभु हम शू करूं मार्ग तो है ये आई कहते देखो स्वामीपना केवल शब्द लिया यहाँ स्वामीपना नहीं है तो केवल जानने वाला रहते हैं ये मुक्त
गजब बात है। देखो धर्मी जी, सम्यक दृष्टि जी, क्योंकि प्रभु आत्मा मुक्त स्वरूप है। शास्त्र भाषा थी मुक्त यहाँ आया है અને 14-15 गाथा में अबध स्पष्ट आया है। प्रभु अबध स्पष्ट है, उसको जानना है जैन शासन जाना। शुद्ध उपयोग में जानने में आया का आत्मा तो अबध स्पष्ट है, बद्ध ने स्पष्ट है ही नहीं, विशेष है नहीं, संयुक्त है नहीं, बोले निश्चय में अबध स्पष्ट में नियत असंयुक्त ये बोले 5 बोले। तो 5 बोल में आशा है एकिला आत्मा शुद्ध चैतन्य घन निश्चय पूर्ण है, ऐसे वो जानते हैं। उससे जैन शासन जाना पसई जैन शासन सब। हाँ वो त्यारे प्रश्न आया ने पंडित जी देखा वो विद्यानंद जी तरफ से उपदेश संत मजन उपदेश संत मजन नो कहने वो करे अखंड प्रदेश ऐसा है नहीं। जैसन आचार्य टीका वहां चौखो शब्द है तो उसकी झूठा कहते हैं। जैसन आचार्य की बात झूठी है, ये लोग को आचार्य की झूठी बात है। अमृतचंद्र आचार्य को समझ में आया ही नहीं इनके उपदेश का, बाकी छोड़ दिया। अरे अमृतचंद्र आचार्य कौन है प्रभु? इन्हें तो गंधर जैसा तीर्थंकर जैसा काम कुंदाचार्य के आए और गंधर जैसा काम अमृतचंद्र किया प्रभु तो नहीं कदम। એ નહીં કે અમૃતચંદ્ર અપદેશવાદ મૂકી દીધો છે માટે સમજ્યા નથી। તો ઉપદેશ દ્રવ્ય सूत्र है तो द्रव्य सूत्र की व्याख्या न किया, भाव की क्या मूल तो एम है तरीके समझी शक्या नहीं, मैं कर सकेलो नहीं। અને જૈસન આચાર્ય અર્થ કર્યો કે ઉપદેશ એટલે દ્રવ્ય सूत्र એ ખોટું છે કે ત્યારે क्या है उपदेश अखंड प्रदेश, ऐसी बात रहती है नहीं शास्त्र में। कहाँ कहना असंग प्रदेश ने कहाँ कहना एक प्रदेश ऐसा शास्त्र में आता है। क्या किया एक है, क्या कहना असंग प्रदेश पूर्ताली शक्ति में आती है नियत प्रदेश शक्ति, नियत प्रदेश शक्ति असंग प्रदेशी निश्चय शक्ति उसमें है, ऐसा गुण में आया है। अने बहुत तो टूकू करना हो तो 85 इकाई में 31 गाथा में ऐसा है लोक प्रमाण एक प्रदेशी ऐसा आया है तो लोक प्रमाण पर एक प्रदेशी गिनने में आया भंग न करके है असंग 31 गाथा है 85 इकाई। हाँ नियत प्रदेशी है उत्तरी शक्ति में से शक्ति तो अखंड है सच्चा प्रदेश अखंड है इसकी बात है ही नहीं। असंग प्रदेशी गणों का सामान्य पद गर्म होते एक प्रदेशी हो बस तो समझ में आया। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कोई किया नहीं ऐसा है ऐसा भगवान ने कहा है समझ में आया। हाँ ये कहते हैं संकेती तो मुक्त है कहते हैं। अब स्पष्ट हुआ ना जो पसे अपान अबद्ध पूछ अबद्ध की नासी से कहा है मुक्त असी से है, समझ में आया। और बद्ध स्पर्श है ना बद्ध स्पर्श नहीं ये अनासी से અને મુક્ત એ અસી છે તો મુક્ત અહીંયા દિયા है। वस्तु है ये तो मुक्त स्वरूप ही है, पर्याय में राग ने पर्याय में निमित्त मिल संबंध है, द्रव्य ने राग ने निमित्त मिल संबंध है ही नहीं द्रव्य के साथ। समझ भाई ये आगे देखो कि सम्यक दृष्टि जी सही मुक्त ही वो ही नोर्थ करो 30 कारण से स्वनाम सम्यक दृष्टि जी मुक्त ही हो जैसे निर्विकार सीधे रहता है। हाँ पेशा से पवित्र जो शुद्ध भगवान द्रव्य ने गुण पवित्र है ऐसी परिणति प्रतीत सम्यक दर्शन में परिणति पर शुद्ध हो गई तो उसमें राग का संबंध नहीं, ये अपेक्षा से है मुक्त ही है कहने में आया है। द्रव्य तो मुक्त है ही पर पर्याय में भान हुआ तो पर्याय में भी इतना मुक्तपना आया तो उसको मुक्त ही है हम कह दिया है। फिर मुक्त ही क्या ना पार तो अमृतचंद्र आचार्य कहते
मुक्त ये तो मुक्त तो है नहीं, परंतु बे प्रकार का। एक तो मुक्त स्वरूप है, इसके अनुभव हुआ सम्यक दर्शन में, तो मुक्त स्वरूप है उसका अनुभव अबत स्पर्श का, तो भी मुक्त हुआ। अरे भान हुआ अंदर का, राग से भिन्न ऐसी प्रणति भी इतनी मुक्त हो गई, राग से भिन्न होकर स्वभाव में एकता होकर शुद्ध परिणति हुई, इतनी भी राग से मुक्त हो गई, पर्याय भी हो तो उसको क्या कि मुक्त ही वही। पूर्ण मुक्त नहीं, पर मुक्त जैसा है कहने क्या है। ये तो एक निजराधिकार में भी आता है। लक्ष्यों समा पाणु को पूछिए, निजराधिकार साक्षात मोक्ष लेकर ले आया क्या कलश है, निजरा कलश 10 है। કેટલું લાંબુ ક્યાં તે બી મેળવતા મેળવતા લખી નાખ્યું છે નિજરા અધિકાર હે ને। 10મો કલશ છે, 10મો નિજરા અધિકાર। હા 142 કલશ, નિજરાનો 10મો, આમ 142 उसमें ले आए। देखो ये ऊपर की 5वीं 6ठी पंक्ति है, कैसा है ज्ञान पद, कैसा है ज्ञान पद, साक्षात मोक्ष है, प्रत्यक्षतया सर्वथा प्रकार मोक्ष स्वरूप है। हाँ 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 हाँ, स्वरूप ऐसा है, ऐसी प्रणति आ गई तो कह दिया ने। हाँ हाँ साक्षात समझ में आया। बहुत गंभीर, सारा समय सार में एक एक गाथा, एक एक शब्द। ओहो, भगवान की सिद्धि वाणी अनुभव चारित्र से है, सम्यक दर्शन से चारित्र का अनुभव में भूमिका में सुना भगवान पास, वो आकर बना जाए। तो कहा यहाँ सएव मुक्त एव, कहिए ने ऐसे। समुक्त एव समझी मुक्त एव, जैसे निर्विकार, ये कीधु खरू ने એટલે ઉપમા કીધા, जैसे निर्विकार थी वैसा है, और એવું કીધું કે મુક્ત એવ, મુક્ત ની જેમ। તો કોની જે છે સિદ્ધ ભગવાન है मुक्त એ છે ને શબ્દ પાઠ, તો મુક્ત એવ નો મુક્ત એવ, મુક્ત ની જેમ, जैसा निर्विकार थी वैसा। हाँ हाँ हाँ, राजमन टीका पण कैसी किया है। हाँ हाँ, एक एक शब्द की किमत से प्रभु आ तो वितराग करने लोक नो नाथ एवड़ी विराजे एनी वाणी एमांथी एनी गाड़ीए बेसीने अर्थ करवा। भगवान मोटी पेटी से भगवान ने कहा। એવી વાત છે બરોબર, બહુ અસર છે। आता नहीं तो શું વાત કરવી, રાજમલે ટીકા બનાવી, બહુ સરસ બનાવી। રાજમલ નાટક સમયસાર શું કહેવાય, બનાસદાસ કોડમલ। હા હા, વસ્તુ की टीका वर्ण अंतर में બેસવી જોઈએ। વાત બાપુ આપો વાત છે અંતર। હા, એકલી ભાષા કામ, भाषा करे नहीं कहीं काम। हाँ हाँ, कैसा है समझ के जीव परम जानन है ना, परम जानन जितनी है पर द्रव्य की सामग्री उसका ज्ञायक मात्र है। केवल आई होगा ना, केवलम जाना थी, क्या स्वामी पण कर लिया, स्वामी नहीं तो आई तो परम जानन। हाँ हाँ हाँ, जितनी है पर द्रव्य की उसका ज्ञायक मात्र है। जानने वाला है, ऐसे है यार, क्योंकि अपना स्वभाव ज्ञान में आनंद है, ऐसा सन्मुख होकर भान हो गया तो पर सन्मुख की जितनी राग आदि है उसका वो करता भोगता नहीं। परम जानन किया ना, केवल चाहे ज्ञायक मात्र है, परम के
न्यालिया देखो है ना, किसान उसका विनायक मात्र है, विनायक मात्र है, विनायक मात्र है। हाँ हाँ हाँ, शरीर वाणी मन क्रिया होती है वो तो जड़ से होती है, उसका भी विनायक मात्र है। અને राग आदि भाव शुद्ध होता है उसका भी विनायक मात्र, विनायक मात्र। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? मिथ्या दृष्टि के समान स्वामी रूप नहीं। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि तो राग का स्वामीपना होता है, मेरा राग है और राग से शुभ करते करते मेरा कल्याण होगा, तो मिथ्या दृष्टि स्वामीपना है उसका। अपना स्वस्वामीपना संबंध छोड़कर राग का स्वस्वामीपना ले लिया। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? मिथ्यादि के समान स्वामी नहीं। कैसा है? शुद्ध स्वामियत, सम्यक दृष्टि शुद्ध चैतन्य वस्तु में नियत आस्वाद रूप मगन है। हाँ हाँ हाँ, देखो नियत और तो नीचे के रूप है ना, नियत है नीचे, तो नीचे का अर्थ अपना आनंद का स्वाद है। हाँ हाँ, वस्तु स्वरूप का स्वाद को या नियत का अर्थ क्या है? राग का स्वाद का भोक्ता करता छोड़कर सम्यक दृष्टि निज स्वरूप का स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट। झीणी वातो છે શું ભાઈ, મુંબઈમાં કઈ મળે એવું ન મળે કાંઈ। હા, હેરાન થઈને મરી જાય મફતમાં, પછી કરોડપતિ 10 કરોડ ને 12 કરોડ ને। હા હા હા, આવો ભગવાન અંદર કે છે તો नियत शुद्ध चैतन्य वस्तु में नियत आस्वादु मगन है। हाँ हाँ, किस कारण से? कर्ण विदयो अभावात। क्या कारण ऐसा है? राग का करना ने भोगना ऐसे भाव समदृष्टि जीव के मिटे हैं, अभावात ना। हाँ हाँ, क्योंकि राग ऊपर की दृष्टि छूट गई, दृष्टि जिसमें राग नहीं क्या दृष्टि लग गई है ध्रुव पर। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें तो राग है नहीं, तो राग का कर्ता भूत मिट गया। अभाव से नहीं, कर्ण वेदी अभाव। हमारे प्रकट मिथ्या संसार है, दूर आते है ये मिथ्या संसार है। ये राग को अपना मानना, राग से लाभ मानना, राग पर दृष्टि, ये संसार मिथ्यात है, ये संसार है। संसार छोड़ो एम कहते हैं ना, बाइडी छोकरा कुटुंब छोड़ा, संसार छोड़ा, नहीं, संसार पर्याय अपने से भिन्न नहीं रहती। संसार पर्याय है तो अपनी पर्याय अपने से भिन्न नहीं रहती। ये विकारी पर्याय अपने में है, ये संसार है। मिथ्यात के मिटने पर जीव सिद्ध सदृश है। मिथ्यात का नाश होने से है सिद्ध सदृश है, सिद्ध पुणु जी नहीं बने, तो सिद्ध सदृश करने में आया है, ये सोचेगा। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। કળશ 198 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું।